Good morning, my dear students. How are you all? You're welcome to the online classes for Kids Heaven Public School. Dear grade 11 students, today we shall begin chapter 3 from our Hornbill book, okay? And the title of this is Discovering Tut. The saga continues. And the author of this is A.R. Williams. Before we begin the story, let me tell you what T-U-T, Tut, is. Now, Tut is the name of the youngest king that was also the last heir of the Pharaoh dynasty. Now, he was just a teenager when he died. So, his death is still a mystery. But this name, Tut, has a full form, which is Tutankhamun. It was earlier a different name, but he later changed it. Now, to know the reason why he changed his name and how he died at such an early age, we shall study and understand the story. Discovering Tut, the saga continues, by A.R. Williams. Let's have a quick introduction to the story. Now, he was just a teenager when he died. Our author informs us this. He was the last heir of the powerful Pharaoh dynasty, Tutankhamun. Now look at the word H-E-I-R. It's pronounced as heir. The H there is silent. Also, Tut was the last ruler of his family. His tomb. Okay, now look at this word T-O-M-B. Now the B there is silent when we pronounce it. It's gonna be tomb. So his tomb was discovered in 1922 by Howard, who was an archaeologist, and after 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. अब ये जो हमारी स्टोरी है टट के बारे में है, जिसका पूरा नाम है टुटनखामुन. जो पावरफुल फेरो डायनेस्टी थी, ठीक है, ये उसके लास्ट ईयर है. मतलब ही वॉज द लास्ट रूलर, उस फैमिली के लास्ट किंग थे, एंड वो अपनी टीनेज में थे. अब टीनेज क्या होती है? जो 13 से 19 के बीच की एज होती है, अप टू 19. ओके, अब इनकी जो टूम थी ना, ये डिस्कवर की थी हॉवर्ड ने 1922 में. इनकी टूम में बहुत सारा सामान था, इनके गोल्ड थे, इनके एंटीक्स थे, प्रेशियस सामान था. लेकिन इनकी जो डेथ थी वो एक मिस्ट्री थी, मतलब उसका सही से पता नहीं. ठीक है, सो इनका एक सीटी स्कैन किया गया था. दैट्स अ कंप्यूटर टोमोग्राफी. आगे बताएंगे हम इसके बारे में. अब उस सीटी स्कैन से बहुत क्लूज मिले हैं इनकी लाइफ एंड डेथ के बारे में, एंड काफी डेटा भी ऐसा मिला है जिससे कि हम एक अच्छी नई रिपोर्ट बना सकते हैं इनकी डेथ के बारे में. ठीक है, so this was a brief introduction about the story Discovering Tut. Now let us read, understand and enjoy the story. Okay? With the title Discovering Tut, the saga continues. And the author of the story is A.R. Williams. Now this story is about a king who dies very early in life, that is during his teenage years. As I said earlier, teenage is the age from 13 to 19. The death of Tut was very mysterious. Mystery, that means it is still unknown till today. Nobody knows the truth, how he died. Let us study the story. Let's see how interesting it is, and let us also know how Tut died. So, without delay, let us begin the story right away. He was just a teenager when he died.
the last heir of a powerful family that ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. Now देखें, he was a teenager when he died. मतलब उसकी जो एज थी वो 13 से 19 के बीच में थी जब उसकी मृत्यु हुई थी. जो उनकी फैमिली थी, ठीक है, जो इजिप्ट में जिन्होंने रूल किया था बहुत सालों तक, सेंचुरीज 100 साल, हजारों सालों तक उन्होंने रूल किया था. अब ये उस फैमिली का लास्ट एयर था. नाउ ये जो वर्ड है HEIR, हम इसे H से प्रोनाउंस नहीं करेंगे, H इसमें साइलेंट है, सो इट्स ear. Okay? Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world had speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. अब जब इसकी टूम जो थी ना, टट की टूम, ये डिस्कवर हुई थी 1922 में. डिस्कवर क्या होता है? डिस्कवर का मतलब होता है कोई चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कहाँ है. सो जब उसको ढूंढते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं, वो मिल जाता है, कहते हैं हमने डिस्कवर किया है. एंड जो मॉडर्न जमाना था, मतलब आजकल का, यही समझ में आया था कि उसका मर्डर किया गया था. जब और कोई क्लूज नहीं मिले कि उसकी डेथ कैसे हुई थी, तो ये स्टोरी बना दी गई थी कि उसका मर्डर किया गया था. नाउ leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the Boish pharaoh. जब उसकी टूम डिस्कवर हो गई, ठीक है, साइंटिस्ट्स ने, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बहुत कोशिशें की हैं. उसकी टूम में उसकी जो बॉडी होती है उसको मम्मी बना के रखा गया था. ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, उस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ये जानने के लिए कि डेथ कैसे हुई थी. लेकिन उसकी डेथ के 80 इयर्स बाद, ठीक है, 80 साल बाद, उसको एक सीटी स्कैन के लिए ले जाया जाता है. सीटी स्कैन होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी. ओके, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे. वो सीटी स्कैन करा गया था, उससे अब काफी सारे क्लूज, मतलब हिंट्स मिले हैं कि एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट कि किस तरह से हुई थी उसकी डेथ. ठीक है, हम आगे स्टोरी में इसकी और डिटेल्स देखेंगे. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. Dark-bellied clouds had scattered across the desert sky all day, and now were veiling the stars in cascade grey. It was 6 p.m. on 5 January 2005. The world's most famous mummy glided headfirst into a CT scanner, brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. अब देखें क्या होता है कि जब उसकी जो मम्मी होती है किंग टट की, ठीक है, जब उसे उसकी रेस्टिंग प्लेस से, उसकी टूम से निकाल कर सीटी स्कैनर में ले जाया जाता है. ठीक है, वो दिन था 5 जनवरी 2005 का एंड शाम के 6 बज रहे थे. जो मौसम था वो बड़ा अजीब था. ठीक है, एक एंग्री विंड. देखिए, जब हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलती हैं, हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे वो गुस्से में चल रही हैं. ठीक है, एन एंग्री विंड. ऐसा नहीं है कि उसको हवाओं को गुस्सा आता है, लेकिन जो तरीका था जिन बहुत तेजी से चल रहे थे. ठीक है, और बहुत गहरे बादल आसमान में छा गए थे जब ये सीटी स्कैनर में ले जाया जा रहा था उनको. एंड ये वर्ल्ड की जो है सबसे फेमस मम्मी थी. अब इनकी डेथ कब हुई थी? 3,300 साल पहले. Let's continue. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped
rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. So हमने कहा कि उसकी जो टूम थी वो डिस्कवर करी गई थी, ठीक है। सो उस दोपहर वहां पर हर जगह के पूरी दुनिया में से टूरिस्ट आए हुए थे और जिस रॉक को मतलब जिस पहाड़ में कट करके उस टूम को डिस्कवर किया था जो कि 26 फीट अंडरग्राउंड थी, वहां पर वो सभी टूरिस्ट इकट्ठे हुए थे, क्रैप्ड मतलब एक भीड़ की तरह थे और वो देखने आए थे मम्मी को। वो गेज कर रहे थे, गेज मीन्स बहुत मतलब लाइक घूरना। तो वो घूर रहे थे कि जहां पर वो बरी की थी, मतलब जहां पर उसे दफनाया गया था ना उस मम्मी को अपने कैस्केट में। देखिए मम्मी क्या होता है, मम्मी को जो है उसकी जो बॉडी है उसको पहले दवा लगाते हैं उस पर ताकि वो खराब ना हो। उसके बाद किंग टट की जो मम्मी थी उसे कंप्लीटली गोल्ड में कवर किया गया था, ठीक है। सो वहां पर उसे जब वो रखी हुई थी उसकी कॉफिन, यू ऑल नो व्हाट इज अ कॉफिन। कॉफिन वो एक केस होता है जिसमें एक डेड बॉडी को रखते हैं, ठीक है। सो सब उसे बहुत घूर रहे थे एंड वो देख रहे थे कि जो चैम्बर है जहां पर वो रखी थी, चारों तरफ दीवार पे कितने एंटीक्स लगे हुए थे, सोने का सामान रखा हुआ था, बहुत सामान वहां पर भरा हुआ था। Some visitors read from guidebooks in a whisper. अब गाइड बुक्स क्या होती है, देखें कोई नई जगह होती है, कोई टूरिस्ट जो होते हैं उन्हें एक बुक, उनके लिए बुक बनाई जाती है जिसमें सारी डिटेल्स होते हैं कि यहाँ क्या क्या सामान है या वहाँ की हिस्ट्री क्या है। सो कुछ विजिटर्स जो थे, कुछ लोग जो आए थे वो गाइड बुक्स में से पढ़ रहे थे। Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. खैर अब देखें ये सारी जो होती है ना माइट्स होती हैं, मतलब ये सुनी सुनाई बातें होती हैं, लोग बना बना के फैलाते हैं। क्या होता है देखें, जो लोग साइलेंटली खड़े हुए थे वो ये सोच रहे थे, पॉन्डरिंग मतलब सोचना, कि जो टट की सडन डेथ हुई थी सिर्फ टीनेज में, वो कैसे हुई थी। क्या फेरोज का कोई श्राप था उस पे, ठीक है, जो उसकी डेथ हो गई। और दूसरा लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग उसे बहुत परेशान करते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। सो देखिए किसी को हम परेशान करते हैं, सडनली डेथ कैसे हो सकती है। सो लोग ये सारी बातें सोच रहे थे वहां खड़े हुए। Now let's continue. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. अब देखें ज़ही हवास, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज की। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी सेक्रेटरी ज़ही हवास थे। वो क्या कहते हैं कि 1920 में जब हॉवर्ड कार्टर ने, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये टूम डिस्कवर करी थी, उन्होंने इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे बॉडी को निकालने की कोशिश में, और इसलिए जो मम्मी थी वो इस वक्त बहुत ही खराब कंडीशन में थी। अब कार्टर के बारे में देखते हैं। सो कार्टर, हॉवर्ड कार्टर जो उसका पूरा नाम था, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery, and still get the most attention. अब हॉवर्ड कार्टर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में टट की टूम डिस्कवर करी थी, ठीक है, और उन्होंने बहुत इसमें ढूंढा था, बहुत एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ तक कि मतलब बेसलेसली उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ,
उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, पूरे चैम्बर के अंदर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत चीजें ढूंढी। जो मम्मी थी उसको काटना भी शुरू किया था कि किसी तरह वो कॉफिन में से निकल आए, लेकिन वो नहीं कर पाए ऐसा। जो मम्मी में सोना लदा हुआ था जिससे वो कवर हुई हुई थी, वो भी उनसे आसानी से नहीं उतारा गया था। खैर, जितना भी सामान था वहां पर, उसे कहा जाता है कि वो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है। रॉयल जो मतलब राजा लोगों के पास जो होती है, जो उनकी फैमिली होती है, हम उनको रॉयल कहते हैं। सो जो सामान रखा था वहां पर उस चेम्बर में, वो सबसे बड़ा रिचेस्ट मतलब सबसे ज्यादा महंगा, सबसे ज्यादा खास कलेक्शन बना हुआ है आज तक दुनिया के रिकॉर्ड में। ठीक है, सोने के बहुत आर्टिफैक्ट्स थे उसमें। एंड एक डिस्कवरी ऐसी हुई थी ये कि आज तक सबसे ज्यादा अटेंशन इसी डिस्कवरी को दी जाती है। But Tut was also buried with everyday things he wanted in the afterlife. Board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. अब जो सामान है चलो वो तो था, उससे अलग टट का जो चेम्बर था उसमें हर डेली यूज का सामान भी था, जैसे कि वो दोबारा जिंदा होगा इस तरह से। ऐसे डेली यूज की चीजें भी, गेम्स रखे थे, रेजर ब्लेड्स थे, उसके कुछ कपड़े थे, ठीक है, केसेस थे खाने के एंड वाइन के। तो आप सोचे देखें, 3300 साल पहले डेथ हुई थी और तब इतना सामान उस चेम्बर में रखा गया था। वाओ। So let's continue. After months of carefully recording Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. Fine. जब जितने भी फ्यूनररी ट्रेजर्स थे, मतलब जितना भी सामान था, जब उनका एक अच्छा सा रिकॉर्ड बना लिया, उसके बाद जो कार्टर था, हॉवर्ड कार्टर, उसने क्या किया, उसने जो कॉफिन्स थे वो 3 नेस्टेड कॉफिन्स थे, एक के अंदर एक थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो सबसे पहला खोलता है। अब जो सबसे पहला कॉफिन था उसमें क्या था, एक श्रॉड था। श्रॉड क्या होता है, श्रॉड एक कपड़ा होता है, एक तरह का, हाँ, कवरिंग होती है जिसमें हम डेड बॉडी को लपेटते हैं। सो उसमें क्या था, उसमें हार बने हुए थे पत्तों के। विलो एक पेड़ होता है, ठीक है, उसके पत्ते, एंड देन ऑलिव जो कि होता है जैतून, जैतून के पत्ते, सेलरी भी एक सब्जी होती है, लोटस पेटल्स, ठीक है, एंड कॉर्नफ्लावर्स, इन सब चीजों के पत्ते एंड फूलों से उस पे लगे हुए थे। और इससे ये प्रूव होता है कि जब बरियल हुआ था वो मार्च या अप्रैल में हुआ था। When he finally reached the mummy, though, he ran into trouble. फाइनली जब वो नेस्टेड कॉफिन्स में वन बाय वन देखता रहा, फाइनली मम्मी तक वो पहुंच ही गया, ठीक है। द रिचुअल resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. वो जो रिचुअल होता है ना कि जब बॉडी है डेड हो गई तो उसमें रेजन्स लगाए जाते हैं, मतलब दवाएं लगाई जाती हैं ताकि वो बॉडी सड़ ना जाए। अब उसकी वजह से वो इतना सख्त हो चुकी थी बॉडी, उसकी जो टट की जो बॉडी थी वो कॉफिन के बिल्कुल